हेलो मेरे फ्यूचर चीफ इंजीनियर्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ रिटन पेपर डिस्कशन। राहुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? जस्ट टाइप यस और से समथिंग। बताओ भाई, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है? ओके, ऑल गुड, विल स्टार्ट। Yes, sir, audible. यस, ओके, चलो तो विल स्टार्ट विथ अगस्त 2025। सबसे रिसेंट अभी लास्ट मंथ का मोटर पेपर है ना। मेनी क्वेश्चंस वेर रिपीटेड बाय प्रीवियस मंथ्स। ये बहुत अच्छा बात है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सो दैट वी कैन फोकस ऑन द रिपीटेड क्वेश्चंस एंड उससे हमारा क्लियर होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू ऑल दिस राइटिंग पार्ट। मेरा काम यहाँ पर आपके लिए चीज़ें आसान करके देना है, तो मैं आपको डायग्राम पर लेकर जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्केच एंड डिस्क्राइब द स्टार्टिंग एयर सिस्टम। तो हम लोग को वी हैव टू स्टडी द स्टार्टिंग एयर सिस्टम ऑफ द मेन इंजन, okay, which was for 8 marks, and then safety interlocks which are provided in the compressed air starting system of the main engine. So basically both are interconnected questions. तो पहले स्टार्टिंग एयर सिस्टम ड्रॉ करना है एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन व्हाट आर द सेफ्टी इंटरलॉक्स एंड व्हाट why are they provided. ठीक है, okay, we will move to the diagram. This is your starting air system diagram. This is very easy, taken from DG's website. ये बनाना है आपको। okay, starting air system में what do you see first is starting air compressors. सबसे पहले you have to draw starting air compressors. From the starting air compressors you have screw down non-return valve so that air does not flow back to the compressor side. ठीक है, this is starting air line safeties. Then you have SDNR just ahead of the receivers. ये आपका air bottle हो गया. You have two number of air bottles. The starting air is going into the air bottles, filling up the line, and then it is connected to the main start air line of the main engine. ठीक है, I think everybody is able to see this. अभी देखो मेन चीज़ क्या है. When you give the start signal from here, what happens, starting air जो है ये blue line is already, when you open this start air receiver valve, outlet valve, 30 bar air, starting air will go and wait near the automatic valve. ठीक है, इसको एयर बॉटल का स्टार्टिंग एयर वाल्व दैट यू ओपन, एयर बॉटल स्टार्टिंग वाल्व, and this is your main automatic start air valve. So your 30 bar air is waiting here. When you give the start air signal, your 30 bar air will go and cross check with your turning gear interlock. So पहला interlock is your turning gear interlock. Okay, that will check your turning gear is engaged or not. I hope you everybody understand, no, what is turning gear. When you check the turning gear is not engaged, then this air will pass to the distributor, and on one side it is going and waiting at the starting air manifold. अभी क्या होता है, ठीक है, जब ये टर्निंग गियर interlock has been checked, it will cross the distributor and as per the firing sequence, starting sequence. तो अभी देखो क्या है, सेम एयर, दिस इज 30 बार एंड दिस एयर इज ऑल्सो हैविंग 30 बार प्रेशर, बोथ एट द सेम प्रेशर. ओके, दिस इज वन मोर स्टार्टिंग एयर लाइन सेफ्टी. बर्स्टिंग डिस्क इज प्रोवाइडेड इन MAN B&W engines. In Sulzer you have cylinder relief valve in the common line or starting air relief valve in the common line. अभी क्या है देखो यहाँ पे, this is your cylinder start air valve. सिलेंडर स्टार्ट एयर वाल्व है ना, हर एक सिलेंडर पे माउंटेड होगा. अभी व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन लाइक, इट इज स्प्रिंग लोडेड एंड डुअल पिस्टन टाइप. So you see one piston has a larger surface area and another piston is having smaller area. So same air pressure when it, अब ये वाल्व खुलेगा कब,
when your start air distributor is giving signal for this on the top side of the cylinder start air valve, तो यहाँ पे P into A, pressure into area, area is more, so the force becomes more, so this force will push the valve into open position. और सेम एयर जब ये वाल्व खुलेगा तो यहाँ से 30 बार का एयर जाके सिलेंडर में एंटर करेगा, 30 बार एयर. सो देर आर कंफ्यूजन इन स्टूडेंट्स कि 7 बार एयर होता है ना, दूसरा एयर होता है. देर इज नो अदर एयर प्रेशर हेयर, इट इज ऑलवेज 30 बार. So it is crossing your turning gear interlock as per the firing order, waiting in the distributor as per the firing order, going and pushing the spindle, and then your 30 bar air which is waiting at the starting air manifold, I mean just after the automatic start air valve, will go and open the cylinder start air valve, and as per the starting sequence you will have air inside the cylinder. I think this is clear. By clear हुआ ये starting air system? कोई डाउट है इसमें? इसी को आपको बनाना है, ठीक है, यस हो गया. आगे इंटरलॉक बताना है. तो इंटरलॉक बेसिकली होता क्या चीज़ है? इंटरलॉक, एज वी हैव सीन वन इंटरलॉक विच इज टर्निंग गियर इंटरलॉक, विच इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द इंजन. इंटरलॉक्स आर प्रोवाइडेड so that the engine can be started or reversed when certain conditions have been fully met. I mean they are conditions कि turning gear disengaged है, this is one condition, ठीक है. Your running direction interlock or your air spring pressure interlock or your lube oil pump interlock, these are all provided to make sure that your engine is running under safe conditions when only these interlocks are met. ठीक है, तो इससे कोई भी इंजन का डैमेज होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है. थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग. तो क्या क्या इंटरलॉक है? एक टर्निंग गियर इंटरलॉक हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग गियर सिस्टम में. टर्निंग गियर इंटरलॉक वी हैव ऑलरेडी सीन. देन यू हैव रनिंग डायरेक्शन इंटरलॉक, दिस इज फॉर फ्यूल साइड इफ इट इज आस्क्ड इन द स्टार्टिंग गियर सिस्टम. देन टर्निंग गियर रनिंग डायरेक्शन इंटरलॉक होता है कि अगर आपका कैम्स रिवर्स नहीं हुआ, कैम्स हैव नॉट रिवर्स्ड, देन योर रनिंग डायरेक्शन इंटरलॉक विल नॉट अलाउ द एयर टू इंटर इन द अदर डायरेक्शन. मान लो कैम्प्स का फुल रिवर्सिंग नहीं हुआ तो फ्यूल नहीं सप्लाई होगा इंजन को, ठीक है. ये हो गया रनिंग डायरेक्शन इंटरलॉक. आगे चलेंगे. स्टार्टिंग एयर डिस्ट्रीब्यूटर इन द एंड पोजीशन, ठीक है. सो इट प्रिवेंट्स द स्टार्टिंग एयर फ्रॉम इंटरिंग शिफ्टिंग द डिस्ट्रीब्यूटर. अगर डिस्ट्रीब्यूटर का कैम्प्स रिवर्स नहीं हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्ली शिफ्टेड नहीं हुआ, ठीक है. एक है ऑक्सिलरी ब्लोअर इंटरलॉक, ठीक है. ऑक्सिलरी ब्लोअर इंटरलॉक इज प्रोवाइडेड कि अगर ब्लोअर्स जो है ऑन नहीं है, ऑटो में नहीं है, तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा. ऑक्सिलरी ब्लोअर इंटरलॉक. इसके बाद स्प्रिंग एयर प्रेशर का इंटरलॉक, मतलब अगर आपका एग्जॉस्ट वाल्व को जो की स्प्रिंग एयर क्लोज करती है, विच इज शट बाय द स्प्रिंग एयर, इफ दैट स्प्रिंग एयर प्रेशर इज लेस, योर मेन इंजन विल नॉट स्टार्ट, ठीक है. स्टार्टिंग एयर नहीं जाएगा. किस किस केस में? ऑक्सिलरी ब्लोअर के केस में, टर्निंग गियर के केस में, स्प्रिंग एयर के केस में. लूब ऑयल प्रेशर अगर कम है मेन इंजन का, ठीक है, पिस्टन कूलिंग का प्रेशर कम है, जैकेट वाटर का प्रेशर कम है, इन दिस केसेस, तो लूब ऑयल मेन इंजन लूब ऑयल प्रेशर इज ऑल्सो वन इंटरलॉक, ठीक है. स्टार्टिंग एयर डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑल्सो वन इंटरलॉक. तो आपको कितना इंटरलॉक हो गया? टर्निंग गियर, स्टार्टिंग गियर, डिस्ट्रीब्यूटर इन एंड पोजीशन, मेन इंजन लूब ऑयल प्रेशर, टर्निंग गियर, ऑक्सिलरी ब्लोअर इंटरलॉक और स्प्रिंग एयर प्रेशर इंटरलॉक. ये 5 इंटरलॉक लिखोगे स्टार्टिंग एयर सिस्टम में, गुड इनफ, ठीक है. उसी को एक्सप्लेन करना है. आगे चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द सेक्शनल डायग्राम ऑफ अ मेन इंजन पिस्टन शोइंग ईच पार्ट. कूलिंग पैसेजेस दिखाना है हमको ऑयल कूल्ड पिस्टन में. वी हैव टू शो, दैट इज फॉर 12 मार्क्स. तो मेजर दिस क्वेश्चन इज कवरिंग 12 मार्क्स इन दिस पार्ट सेक्शनल डायग्राम में. एंड नेम द मटेरियल्स, तो हम लोग इसका मटेरियल भी देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है. ये है आपका बेसिकली पिस्टन का डायग्राम, ओके. सो वी हैव टू शो द कूलिंग ऑयल पैसेजेस, कैसे ऑयल इंटर करता है, कैसे ऑयल बाहर आता है, और सेक्शनल डायग्राम बनाना है पिस्टन का. तो पिस्टन का बेसिकली पार्ट्स दिखाना है. व्हाट ऑल वी कैन सी हियर, यू सी दिस, this is shaded in a different color, this is one part.
दिस इज कॉल्ड पिस्टन रॉड। ठीक है, पिस्टन रॉड जाके नीचे से टाइटन होता है पिस्टन स्कर्ट के साथ। यू सी दिस इज द पिस्टन स्कर्ट, दिस इज द पिस्टन स्कर्ट। अब पिस्टन जो होता है फॉर क्लास 4 एस्पिरेंट्स इट विल बी गुड टू विजुअलाइज। जो पिस्टन देखो, पिस्टन इज इन 3 पार्ट। वन इज योर, दिस वन इज योर क्राउन, पिस्टन क्राउन येलो वाला। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जो ब्लैक सेक्शन है दिस इज योर पिस्टन स्कर्ट। तो पिस्टन क्राउन और पिस्टन स्कर्ट 2 पार्ट में होता है एंड इट इज जॉइंट टुगेदर बाय दिस काइंड ऑफ फिटेड बोल्ट्स। छोटा छोटा स्क्रू होता है अंदर में, बोथ साइड से थ्रेडेड होता है ना, तो ये फिट हो जाता है, दोनों तरफ से थ्रेडेड होता है अंदर में ये। तो आपको नजर नहीं आएगा क्राउन और स्कर्ट अलग अलग, यू सी इट लाइक ए फुल असेंबली। बट आपका जो क्राउन और स्कर्ट होता है दे आर सेपरेट एंटिटीज ऑल टुगेदर एंड क्राउन का टेम्परेचर इज हाइयर whereas स्कर्ट टेम्परेचर इज लोअर बिकॉज दिस इज नीचे का पोर्शन। स्कर्ट क्या होता है, नीचे का पोर्शन होता है ना स्कर्ट, इसीलिए इसको स्कर्ट बोलते हैं, पिस्टन स्कर्ट। और जो ये आपका पिस्टन रॉड होता है दिस विल गो इनसाइड द पिस्टन क्राउन और अंदर जाकर के टाइट होता है ये यहां पे। ठीक है, इसके लिए अलग से ये देखो फिटिंग अरेंजमेंट, ये डॉटेड दिख रहा है ना, ये इसका बोल्टिंग होता है इसमें। ठीक है, तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑल टुगेदर। क्राउन है, पिस्टन असेंबली में स्कर्ट है एंड देन यू हैव पिस्टन रॉड। अब ऑयल कूलिंग कैसे होता है, तो फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द पिस्टन रॉड इटसेल्फ, पिस्टन रॉड हैज गॉट होल्स। एक बड़ा होल होता है और 2 छोटे छोटे होल होते हैं एट द बॉटम। ये कहां पे टाइटन होता है, जाके आपका क्रॉसहेड पर। तो क्रॉसहेड में ऑयल आएगा अंदर टेलीस्कोपिक पाइप से और इट विल गो इनसाइड। ठीक है, दिस विल गो इनसाइड द पिस्टन रॉड टॉप एंड देन इट विल गो इनसाइड द पिस्टन। अब यहां पे जो आपको दिख रहा है ना, यू विल दिस काइंड ऑफ स्प्रेइंग इफेक्ट, देयर आर नोजल्स इनसाइड। ऐसे करके जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसा ही नोजल्स रहता है बहुत सारा। ये आपका पिस्टन रॉड के ऊपर क्राउन के अंदर रहता है ऐसा नोजल। बट इसमें इस डायग्राम में इट इज डिफिकल्ट टू शो इट, बट दीज आर नोजल्स हियर। सो दिस नोजल्स क्रिएट एन इफेक्ट विच इज कॉल्ड जेट शेकर इफेक्ट। ये बहुत बार ओरल्स में और रिटन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको जब ये डायग्राम बनाओगे, आप एक्सप्लेन करोगे, तो यू कैन एक्सप्लेन दिस effect because oil cooling passages is asked, no, so you have to explain the jet shaker effect or nozzle effect. So because of the movement of the piston there will be a jet, because through jet you will insert oil inside, nozzle effect or jet shaker effect के कारण you will have better spraying of oil in all the extended areas. बेसिकली आपको कूलिंग कहां पे चाहिए, टॉप वाले सेक्शन में, जहां पे हीटिंग देख रहे हो आप 390 डिग्री सेंटीग्रेड तक इट इज हीटेड अप, हायर टेम्परेचर। सो ऑयल कूलिंग वहां पर पहुंचनी चाहिए। तो अर्लियर डिजाइन्स में क्या होता था, बिकॉज ऑफ द इनएक्सेसिबिलिटी और चोकिंग ऑफ द पैसेजेस, मोटे पैसेजेस की चोकिंग होने के कारण ऑयल वाज नॉट एबल टू रीच टू द एक्सट्रीम पॉइंट्स एंड द पिस्टन क्राउन यूज्ड टू क्रैक मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो इसके लिए द मैन BMW डेवलप दिस काइंड ऑफ डिजाइन विच हैज गॉट नोजल इफेक्ट, नोजल असेंबली इनसाइड द पिस्टन असेंबली इटसेल्फ एंड उसकी वजह से दिस इफेक्ट टेक्स प्लेस। और फिर ये ऑयल जो है कूलिंग करके वापस it comes back into the piston rod and then falls back in the crosshead itself, और crosshead से सब में आके गिर जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, टेम्परेचर एंड ऑल इट्स गिवन हेयर। आई होप इट इज क्लियर पिस्टन का डायग्राम। ठीक है, अभी देखो क्या क्या मटेरियल होता है, मटेरियल देख लेते हैं। पिस्टन क्राउन का बेसिकली बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट part which is subjected to सबसे ज्यादा heat, you have
स्टील मटेरियल यूज्ड फॉर पिस्टन क्राउन। स्टील एलॉय होता है कंटेनिंग एलॉइंग एलिमेंट्स लाइक क्रोमियम फॉर स्ट्रेंथ एंड सरफेस प्रॉपर्टीज, निकेल फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ एंड मोलिब्डेनम फॉर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस। और ऊपर से हमने देखा था ना वहां पे इनकोनेल का कोटिंग होता है। इनकोनेल इज एन एलॉय मटेरियल, ठीक है, फॉर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस विच इज निकेल एलॉय। बेसिकली इनकोनेल इज नथिंग बट ए निकेल एलॉय विच इज फॉर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस इन द पिस्टन क्राउन, जो कि बर्निंग से बचाता है। तो बेसिकली हमने देखा कि पिस्टन क्राउन का क्या क्या मटेरियल है। पिस्टन क्राउन इज मेड ऑफ स्टील एलॉय विथ क्रोमियम, मोलिब्डेनम, निकेल, ओके, क्रोम निकेल मोलिब्डेनम एलॉय स्टील, यही लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आते हैं नीचे, तो पिस्टन रॉड का क्या मटेरियल है। पिस्टन रॉड का मटेरियल फोर्ज स्टील, क्योंकि पिस्टन रॉड जो होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी बिग लेंथ and it is subjected to heavy gas forces, so always under tensile stress. That is why it has to be having a very strong material, that is why it is called forged steel, ठीक है। forged steel हो गया। पिस्टन स्कर्ट, तो पिस्टन स्कर्ट इज सिंपल ना, उसमें there is very less temperature gradient, so it is cast iron। आगे चलते हैं। पिस्टन रिंग्स आर मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन में इट इज हैविंग नॉड्यूलर और स्फेरॉइडल फॉर्म। अच्छा, ये क्या होता है मेटलर्जी में, ग्रे कास्ट आयरन विथ नॉड्यूलर और स्फेरॉइडल फॉर्म, एंड इट इज द एडवांटेज। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रे कास्ट आयरन? कि नॉड्यूलर फॉर्म और स्फेरॉइडल फॉर्म, जिसको बोलते हैं नॉड्यूलर और स्फेरॉइडल, in metallurgy when you will study, this gives additional strength or lubricating property to the material। क्या होता है कि because बाउंड्री लुब्रिकेशन कैरी आउट होता है लाइनर और पिस्टन के बीच में, तो पिस्टन और लाइनर के बीच में बिकॉज देयर इज हैवी फ्रिक्शन, हीट इन्वॉल्व, लूब ऑयल का लेयर इज ट्राइंग टू डिसिपेट एंड मूवमेंट ऑल्सो। तो एक तो हो गया हीट प्लस मूवमेंट ऑफ पिस्टन, तो उसके कारण से यू नीड द फिल्म ऑफ ऑयल टू रिटेन एट द सरफेस ऑफ द लाइनर along with the piston so that lubrication is not broken। So for boundary lubrication you need the material to have a property to catch hold of the lube oil। तो इस ये नॉड्यूलर और स्फेरॉइडल कास्ट आयरन हेल्प्स यू in doing that। So basically that is why you need nodular cast iron in your rings। Okay, now coming to next question, which is why it is important to measure the bearing clearances in diesel engine। what is bridge gauge, how is bridge gauge used, explain with a diagram। 6 नंबर का क्वेश्चन है। what are other recommended methods for checking bearing clearances। ठीक है, अच्छा bearing clearance क्यों लेना जरूरी है, तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं आंसर्स कुछ लिखा हुआ है। bearing clearance, importance of bearing clearance। सबसे पहला ये बात है कि देखो अगर बहुत कम होगा क्लियरेंस, व्हेन इट इज वेरी लेस, व्हेन द बेयरिंग क्लियरेंस इज वेरी लेस, दैट मींस योर ऑयल विल नॉट बी एबल टू फ्लो प्रॉपरली, इनसफिशिएंट ऑयल फ्लो होगा, जिसकी वजह से बेयरिंग सीजर होने का चांसेस है व्हेन देयर विल बी वेरी लेस क्लियरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। So basically it will ensure, your clearance will ensure a better hydrodynamic film or lubrication between the two surfaces। if the clearance is too high, in that case what hoga, in that case what will happen, your oil pressure will reduce because that film is good enough to
to keep the oil, you know, pressure. कई बार क्या होता है ना, when you decarb and then oil pressure is not coming, उसका बाद when they will you realize that your maybe the clearance is higher. What happens? Oil is continuously flowing. There is no resistance because the clearance is more. So if high clearance, then oil pressure is loss of oil pressure and due to which hammering effect होगा और excessive wear होगा, loading हो जाएगा bearing का excessively. So little clearance is having also problem, higher clearance is also having problem. That is why we need to maintain the effective bearing clearance as per the maker's recommendation. Load distribution में भी help करता है. Uniform loading happens in bearing surfaces when you have proper clearance, etc. or other are not very important. Preventing major failures, so that when you take bearing clearance from time to time, then you can know about any abnormality that is happening with your bearings or your crankshaft. So in that case you will be avoiding any major failures in future. ठीक है, आगे का पार्ट है इसमें डेप्थ गेज समझाइए. ब्रिज विथ डेप्थ गेज. डेप्थ गेज आर आई मीन वेरी रेयर टू बी यूज्ड these days. For main bearing clearance, basically we use depth gauge. You see this photograph. This is photograph of a depth gauge. इसमें क्या कर रहा है, देखो ये इसमें क्या करता है, ये बॉटम शेल रहने दिया, टॉप का जो होता है ना बेयरिंग कवर, टॉप बेयरिंग कवर निकाल देते हैं एंड द टॉप बेयरिंग शेल इज ऑल्सो रिमूव्ड एंड देन यू यूज अ ब्रिज. Bridge matlab there is an equipment which looks like a bridge and then you place this bridge on the top of your transverse girder. ठीक है, and then from the bridge you insert one depth gauge. जैसे कि अपना वर्नियर के अंदर डेप्थ गेज होता है ना, there is specific depth gauge for this. Insert it from the top. क्या होता है कि because when the main engine is stopped, your journal bearing is sitting on the saddle. यहां पे बैठ रहा है, तो all the load is here on the saddle, the clearance is on the top. So when your clearance is on the top at that time, what is hammering effect? Okay, I will explain what is hammering effect. So clearance is on the top. In that case, this depth gauge will go and measure your bearing clearance. So that is one method of measuring your main bearing clearance with a bridge gauge along with a depth gauge. Bridge along with depth gauge, bridge along with filler gauge is also one method, but here they have asked you explain only the use of a bridge gauge. This is how you use a bridge gauge. इसको explain कर लेना है अपने word में. Hammering effect in bearings. Hammering effect is like, अब you have higher clearance ना, तो क्या होगा कि जब दो surfaces के बीच में when you have more clearance, the loaded part will try to hammer the lower part. जैसे कि अब जो पिन है मान लो और your journal है, जैसे कि main bearing journal है, ठीक है, और ये नीचे bearing है, तो ये जर्नल जो होगा जब लोडेड होगा, बिकॉज देर इज नो प्रेशर, इट विल ट्राई टू हैमर, और साइक्लिक लोडिंग के कारण इट विल चेंज इन एवरी साइकिल. तो मारेगा नीचे, फिर एक बार मारेगा, तो इस तरह से एवरी टाइम दिस विल हैमरिंग विल टेक प्लेस इफ योर बेयरिंग क्लियरेंस इज मोर. आई थिंक इट इज क्लियर. सर प्लीज अगेन एक्सप्लेन अबाउट डेप्थ गेज. अच्छा ठीक है, डेप्थ गेज समझाना है ना. अच्छा, मेन बेयरिंग, पहले तो ये समझ लो कि मेन बेयरिंग क्लियरेंस के लिए वी हैव टू यूज डेप्थ गेज. मेन बेयरिंग क्लियरेंस, ओके. सो मेन बेयरिंग में व्हाट हैपेंस इज, दिस इज योर ट्रांसवर्स गर्डर, ओके, वेयर योर टू पार्ट्स. सो आपका बेयरिंग जो होता है टू हाफ में होता है ना, वन इज द टॉप पार्ट एंड वन इज द बॉटम हाफ, टॉप बेयरिंग सेल एंड द लोअर बेयरिंग सेल. अब टॉप बेयरिंग सेल में there is a cover here, okay, which is tightened by fitted bolts. ठीक है, तो in case you are using a depth gauge, you have to remove the
टॉप पार्ट, ठीक है, टॉप पार्ट कवर हटाओ, अपर बियरिंग कीप बोलते हैं उसको, रिमूव द अपर बियरिंग कीप, अपर बियरिंग कीप एंड लोअर बियरिंग कीप. तो here you have to remove the upper bearing keep. Now when you remove the upper bearing keep, along with it comes your top shell, ठीक है, ऊपर वाला जो बियरिंग शेल है वो उसके साथ में बाहर आ जाएगा, इसको निकाल लेना है. अब क्या होगा, आपका जर्नल एक्सपोज हो जाएगा. जब आपका जर्नल एक्सपोज हो जाएगा और ये जर्नल जो है ये नीचे बैठता है, when it is loaded it is sitting down, okay, on the bottom shell, so your clearance is coming on the top. In this case you just put a bridge here and the bridge has got a hole on the top. You insert a depth gauge from the top, depth gauge insert karo and it will touch the journal top. When it will touch the journal top you will get the clearance here, okay. This is your main bearing clearance. क्या नाम है इसका, राहुल. राहुल समझ में आया. ज्यादातर सल्जर, देखो यहां लिखा है ना, इट वॉज यूज्ड इन सल्जर 2-stroke इंजन. When main bearing shell is removed along with the keep, after that a bridge is fitted on the top of the journal pit from port to starboard. Port to starboard here in transverse side, making a bridge over the crankshaft with two ends supported on the cross girder. A simple vernier depth gauge is then inserted in the hole provided on the bridge and scale of the depth gauge is rested on the pin. The total depth on the scale is measured and compared with the previous reading and the reading in the manual for calculating the wear down of the bearing. तो जितना ज्यादा मान लो कि क्योंकि हम लोग तो नीचे का bearing wear down मेजर करते हैं ना, क्योंकि लोडिंग तो नीचे ही होता है. तो जब आपका डेप्थ मान लो इस बार कम आया या इस बार ज्यादा डेप्थ आया, तो पिछले वाले डेप्थ या मेकर रिकमेंडेशन से आप उसको कंपेयर करके पता कर सकते हो कि आपका बियरिंग कितना वियर डाउन हुआ है, ठीक है. उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि अदर मेथड्स ऑफ अपार्ट फ्रॉम ब्रिज गेज मेजरिंग द बेयरिंग क्लियरेंस. तो ये सबसे रिसेंट और अभी जो यूज होता है मैन BMW इंजन में मेन बेयरिंग क्लियरेंस के लिए, दैट इज टेलीस्कोपिक फिलर गेज, ठीक है. टेलीस्कोपिक फिलर गेज इज नथिंग बट वन स्मॉल दिस काइंड ऑफ गेज. अब इसमें क्या होता है, इट इज लाइक जैसे ये पेन है ना, वैसे ही है. देखो ये पेन दबाओगे तो ये निकलेगा नीचे से. तो यहां से जब when you press it from the top so that this filler material, मतलब इसमें से फिलर गेज निकलेगा जो आप ऊपर से देख सकते हो कि 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm कितना डाला वो निकलेगा नीचे से. तो ये इसमें क्या करते हैं, in engines like MAN BMW, this is the most common method used to measure the bearing clearance of the top shell. This method is there, no need to remove. तो इसमें क्या होता है, कोई भी कनेक्शन खोलना नहीं है, कोई भी लूब ऑयल का कनेक्शन नहीं खोलना है. एक मेथड और है बियरिंग क्लियरेंस लेने का, ये डायल विद डेप्थ गेज है ना, नीचे आएगा अभी. तो अभी जो टेलीस्कोपिक फिलर गेज में यू डोंट हैव टू ओपन एनी कनेक्शन, यू जस्ट इंसर्ट इट फ्रॉम द साइड. जैसे कि ये ट्रांसवर्स गर्डर का साइड है ना, यहां से यू इंसर्ट, यू देख रहे हो ये वाला फोटो देख रहे हो, फ्रॉम द साइड यू इंसर्ट दिस, इंसर्ट योर टेलीस्कोपिक फिलर गेज. जैसा मैंने समझाया इस टाइप का होगा, इतना ही पतला होता है वो. यू कैन इंसर्ट इट बाय द साइड ऑफ द बियरिंग. जब ये नीचे पहुंचता है तो यू कैन फील इट कि इट हैज टच्ड द बॉटम. अब इसमें क्या है, देखो इस केस में भी क्या है कि बियरिंग तो नीचे बैठ ही गया है, तो उसके बाद कितना क्लियरेंस है. आफ्टर द पिन इज सिटिंग एट द बॉटम ऑफ द bearing lower bearing shell, what is the clearance which remains? So that is what you are measuring in this case. Different was the case when we are measuring with bridge gauge. तो इसमें टेलीस्कोपिक फिलर गेज आएगा साइड से, यहां टच होगा, उसके बाद तुम ये पेन की तरह उसको दबाओगे, your filler gauge will come out, okay, and it will, and you can feel it from the top कि इतना, मतलब that is the 0.3 mm or 0.4 mm. ये that is what you will feel it. Filler gauge इसलिए होता है, you can feel it from the bottom कि this much is the clearance there in that case. So
द टेलीस्कोपिक गेज इज इंसर्टेड बिटवीन द गैप ऑफ द क्रैंक वेव एंड द बेयरिंग कीप, यहां साइड से। व्हेन द टिप रीचेस द सेल टॉप, नीचे, द फीलर इज इंसर्टेड बिटवीन द सेल एंड द पिन टू चेक द क्लियरेंस। दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू ना। वो जब नीचे टच हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी टच, देन यू प्रेस द टेलीस्कोपिक गेज फ्रॉम द टॉप एंड देन यू कैन नो द क्लियरेंस, बॉटम क्लियरेंस इस केस में। ठीक है, अब आते हैं अगला और मेथड एक है, ये डायल टाइप डेप्थ गेज। आइदर यू कैन यूज डायल टाइप डेप्थ गेज और एनी अदर टाइप ऑफ वर्नियर वाला जो डेप्थ गेज, नॉर्मल डेप्थ गेज होता है, उससे भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस वाले में यू ओपन द लूब ऑयल कनेक्शन, जहां पे लूब ऑयल जाता है ना मेन बियरिंग के अंदर, ओपन कर दो उस लूब ऑयल कनेक्शन को, एंड देन यू यूज वन डेप्थ गेज हेयर। Either you can use one dial type depth gauge or normal depth gauge and then you measure the clearance at the top. अब कैसे आप बोलोगे कि सर अलग अलग मेथड है, अलग अलग टाइप ऑफ क्लियरेंसेस विल कम। यस, different type of clearances will be coming for different method. In that case your maker has provided you the data, according to that you have to compare, है ना। अलग अलग डेटा प्रोवाइड किया हुआ है क्लियरेंस के लिए, तो आपको उससे कंपेयर करके प्रीवियस डेटा से यू हैव टू मेक श्योर और द मेकर्स रिकमेंडेड डेटा कि द क्लियरेंस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इज एक्चुअली विद इन रेंज और नॉट। ओके, सो इन दिस केस you will insert from the lube oil connection, which does not require the top keep to be removed. The lube oil pipe connection screw hole in the bearing keep which can be accessed from the hole on the main bearing cell. तो यहाँ से lube oil connection से इसमें either you will insert a dial gauge. अच्छा, dial gauge indicator जो होता है when the depth gauge touches, depth type of dial gauge एक अलग type of dial gauge होता है जिसमें when it touches you press it from the top like telescopic feeler gauge, then you can know कि कितना the dial is moving. As per the movement of the dial gauge you will come to know the depth. Or simple depth gauge also you can insert, that is also one method you can write. I hope everybody has got it. Dial is inserted in the screw hole and reading is taken for the clearance of the upper cell. ठीक है, I think ये question all of you must be aware, बहुत common question है. Okay guys, ये वाला I need to explain. पिस्टन स्ट्रोक क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, कंप्रेशन रेशियो, बहुत बार रिपीट हुआ है, कॉलेज में पढ़े होंगे तुम लोग. पिस्टन स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी होता है पिस्टन स्ट्रोक. स्वेप्ट वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम, ये जो एक स्ट्रोक में जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है उसको स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं, फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी. Okay, clearance volume is the volume which is volume of the combustion chamber above TDC. Compression ratio is swept volume plus clearance volume divided by clearance volume. ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ. आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ. आगे क्वेश्चन है एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर. ड्रॉ द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ द एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर, naming each component, how is steam generation controlled in the exhaust gas economizer, and briefly explain the procedure to maintain efficiency of this economizer. हाँ प्रेम, पूछो क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है. सर इन टेलीस्कोपिक गेज मेथड we will insert it from the top or the bottom. Top भाई, you have to insert it from the top of the journal. साइड से डालते हैं उसको. YouTube पर सर्च करोगे ना, यू विल फाइंड द वीडियो ऑफ मेथड हाउ टू यूज अ टेलीस्कोपिक फीलर गेज. ठीक है, व्हाट इज द एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर. एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर बेसिकली एवरीबडी अंडरस्टैंड. स्केच देख लेते हैं हम लोग. ये आपका है एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर. सो बेसिकली व्हाट इट डज हेयर इज कि फ्रॉम द, अच्छा, एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर नाम इसलिए है कि द मेन इंजन एग्जॉस्ट जो होता है उसी एग्जॉस्ट को यूज करके व्हेनेवर वी आर सेलिंग वी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम. ओके, इन एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर वी हैव टू ड्रॉ द सर्किट. तो यू सी देयर इज एग्जॉस्ट गैस इनलेट इन द इकोनोमाइजर. इकोनोमाइजर मे बी ऑफ ट्यूब टाइप भी हो सकता है,
और फिन टाइप भी हो सकता है. ओके, बेसिकली ट्यूब टाइप विल हैव योर water tubes and exhaust will pass as like the boiler, similar to the construction of boiler. In fin type you will have extended surface of the fins, thereby heat exchange is proper in the fin type of economizer. ओके, एग्जॉस्ट इनलेट होता है, इसमें ये वाटर ट्यूब हो सकता है या फिन्स हो सकता है. ओके, देन यू हैव वाटर बीइंग सर्कुलेटेड थ्रू अ सर्कुलेटिंग पंप, एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर सर्कुलेटिंग पंप, ईजीबी सर्कुलेटिंग पंप बोलते हैं इसको. ओके, सो स्टीम ड्रम्स आर कॉमन फॉर बोथ इकोनोमाइजर एंड steam drums are common for both economizer and boiler. Then you have a dumping valve here. Okay, and the steam is coming going out and coming through the circuit to the atmospheric condenser. From the atmospheric condenser it is falling into the hot well. From the hot well your feed water pump is taking suction and again giving into the water drum of the boiler. तो ये हो गया complete circuit. बेसिकली सेकेंड पार्ट में इसमें पूछा है कि हाउ यू विल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ से स्टीम जनरेशन. आपका स्पीड ज़्यादा है एंड बॉयलर इज इकोनोमाइजर इज प्रोड्यूसिंग हैवी अमाउंट से 10 kg ऑफ प्रेशर, बट वी डोंट नीड इट. हाउ यू विल कंट्रोल? तो ये डंपिंग वाल्व इसीलिए दिया रहता है. सो द डंप स्टीम वाल्व इज व्हाट इट डज इज इट विल it will actually bypass the steam which is going to the atmospheric condenser. So steam from the boiler will get reduced. ठीक है, तो ये dumping valve will reduce the pressure, directly bypass the steam to the hot well. तो dump steam valve will do that. ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट जो था इस क्वेश्चन का कि हाउ विल यू control the steam generation. So basically controlled by regulating the amount of exhaust flow or dumping the exhaust. तो हम लोग exhaust flow को control नहीं कर सकते हैं. Basically जो इसमें लिखा है that is I think not correct. You have to write the dumping of the excess steam. Exhaust flow control करने के लिए there is no mechanism. I have not seen it. There are some vessels where you can bypass the exhaust, but never in my career have I seen the bypass arrangement for EGV. So basically what we used to do on board is dumping of the excess steam, but you can write it if you want कि bypass arrangement is provided to bypass the exhaust. Okay, last part of the question was कि how will you maintain the efficiency. अच्छा, मेंटेन करने के लिए आप लोगों ने भी किया होगा एफिशिएंसी के लिए, बॉयलर वाटर सर्कुलेटिंग पंप मस्ट ऑलवेज बी रनिंग. बेसिकली वी कीप इन प्रैक्टिस दैट वी रन इट इन द पोर्ट एंड सो दैट कि भूले ही नहीं, क्योंकि बॉयलर वाटर सर्कुलेटिंग पंप इफ इट इज नॉट रनिंग देन इट बिकम्स ए बिग डिजास्टर. योर ट्यूब्स कैन गो kaput in very short time. So boiler water circulating pump keeps on running. If you are stopping it and port or something like that, before starting the main engine 1 or 2 hours before you start your boiler water circulating pump. So one is that to maintain dry running should be avoided in all cases. और दूसरा हो गया, एक तो हो गया सूट ब्लोइंग कंटिन्यूसली करना है आपको, इकोनोमाइजर्स का सूट ब्लो. और दूसरा पॉइंट हो गया, एक और पॉइंट था कि कीप रनिंग द ईजीबी पंप, सूट ब्लो कंटिन्यूसली एंड टाइमली क्लीनिंग ऑफ फिन्स, ईजीबी फिन्स और ट्यूब्स. तो ये तो वाटर वॉशिंग करो या फिर उसका जो है ना ड्राई एयर से वॉशिंग करो, और यू हैव टू रिमूव ऑल द सूट, बिकॉज क्या होता है एग्जॉस्ट इज हैविंग मोस्ट ऑफ द कार्बन, बिकॉज ऑफ दैट योर whole of the fins will be covered with carbon in very short time. So every port whenever you are reaching, make sure that this routine is being followed. You decarbonize, उसको निकालो, cleaning करो. यहाँ से मैनहोल खोलता है और they use water and this air jet to clean. So basically that is how you maintain the efficiency of this system. आगे का क्वेश्चन क्या है
in an auxiliary generator over speed is happening while offloading, ठीक है, हाउ कैन द इंजन बी, यहां पे देखो ये 3 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, अगस्त में आया था, दिसंबर, मार्च. हाउ कैन द इंजन बी स्टॉप्ड, व्हाट आर द प्रोबेबल रीजंस फॉर फेलियर, गिव द डिटेल्स ऑफ द चेक्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेड आफ्टर द इंजन हैज बीन स्टॉप्ड विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल चेक. ओवर स्पीडिंग हो रहा है ऑफ लोड के टाइम पे, वाइल ऑफ लोड, लोड पे नहीं है जनरेटर, वाइल ऑफ लोड. तो व्हेन इट इज ऑफ लोडिंग दैट मीन्स कि ओवर स्पीड ट्रिप जो है वो इनएडवर्टेंटली एक्टिवेट हो गया है, मतलब इट इज नॉट एक्चुअली ओवर स्पीड. If an auxiliary engine overspeeds while overload, how can the engine be stopped? What are the probable reasons for failure? And give details on the check. तो स्टॉप कैसे करेंगे? ओवर स्पीडिंग हो गया है तो यू कैन स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप इट फ्रॉम द ईसीआर इटसेल्फ, ठीक है. तो ओवर स्पीड ट्रिप एक्टिवेट अगर नहीं हुआ, इन केस द सेफ्टी डिवाइस विच इज फॉर ओवर स्पीडिंग, over speed trip will activate. If it is not happening, over speed trip is not activating, try to manually stop it from the ECR. If remote stopping is not possible, then locally you try to stop, press the stop button. Even if not possible, then try to pull the fuel rack to 0 position. सारा फ्यूल रैक खींच लो, खींच के 0 कर दो, इंजन बंद हो जाएगा. अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो क्विक क्लोजिंग वाल्व बंद करना पड़ेगा. बट मेक श्योर दैट अदर जनरेटर इज इन लोड, अदरवाइज यू कैन हैव अ ब्लैकआउट ऑल्सो. अगर स्टैंड बाय नहीं तो स्टैंड बाय जनरेटर स्टार्ट होगा. तो ये केस हो गया. हाउ कैन द इंजन बी स्टॉप्ड, देयर आर फ्यू प्रोसेसेस. ओवर स्पीड ट्रिप एक्टिवेट होना चाहिए, नहीं तो ईसीआर से स्टॉप करो, नहीं तो लोकली जाके स्टॉप करो या रैक को 0 करो. और इवन इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, देन यू हैव टू ऑपरेट द क्विक क्लोजिंग वाल्व्स. Okay, now the second part of the answer is कि what are the probable reasons for the failure. ओवर स्पीडिंग क्यों होता है? तो गवर्नर ही जो होता है, that is your major player which decides the speed, है ना, स्पीड कंट्रोल करता है, फ्यूल को कम ज्यादा करके स्पीड कंट्रोल करता है. तो मे बी देयर इज अ फेलियर इन द गवर्नर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गवर्नर का ड्राइव, इंटरनल लिंक, हाइड्रोलिक शाफ्ट, पिन, लीवर, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है. एक तो ये हो गया. दूसरा है ओवर स्पीड ट्रिप में फेल टू एक्ट ड्यू टू, अब ओवर स्पीडिंग हो गया, ओवर स्पीड होने के बाद ओवर स्पीडिंग गवर्नर के फेलियर से ही मोस्टली होगा. ओवर स्पीडिंग के बाद ओवर स्पीड ट्रिप नहीं चला क्योंकि उसमें बहुत तरह का इशू है, जैसे रस्टिंग आ गया है या वो बहुत टाइम से नॉन फंक्शनल था, टेस्टिंग नहीं हुआ, इस कारण से ओवर स्पीड ट्रिप नहीं काम करा. Both governor and overspeed trip might fail simultaneously if they share a common drive mechanism. Overspeed trip mechanism is seldom activated and may not be regularly maintained. तो बेसिकली अगर रीजंस पूछा जाए फेलियर का, ओवर स्पीडिंग का, तो गवर्नर इज द मेन कल्प्रिट. And then after your governor has not worked properly, your overspeed trip should have worked. If that is not working, that means your overspeed trip has some issues. वो हो गया. ओके, चेक्स रिक्वायर्ड आफ्टर स्टॉपिंग द इंजन. अच्छा, चेक ओवर स्पीड होने के बाद क्या क्या चेक करते हैं? ओवर स्पीड होने के बाद उसके बाद तो यू हैव टू टेक डिफ्लेक्शन ऑल्सो, यू हैव टू चेक ऑल द कंपोनेंट्स, ओपन फॉर अ क्रैंकेस इंस्पेक्शन. तो पहले ये हो रहा है. मैकेनिकल चेक में क्या करेंगे? रनिंग गियर कंपोनेंट्स, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, बोल्ट्स एंड बियरिंग्स, ये सब चेक करेंगे. सिलेंडर लाइनर, सिलेंडर हेड्स वगैरह चेक करेंगे. डिफॉर्मेशन, एबनॉर्मेलिटी, पिस्टन रिंग, ग्रूव्स, गजन पिन, बूसेस एटसेट्रा सब चेक करेंगे इसमें ओवर स्पीडिंग के बाद. ओके, कंडक्ट क्रैंक पिन जर्नल चेक, मतलब एक बार पूरा ओवरऑल चेक करेंगे. मैकेनिकल में ऑल द कंपोनेंट्स ओपन अप इंस्पेक्शन करेंगे एंड थ्रू आउट यू हैव टू चेक दैट एवरीथिंग. फिर लूब ऑयल पंप चला करके देखेंगे, लूब ऑयल का फ्लो देखेंगे. आफ्टर रन इट विदाउट लोड फॉर अबाउट 30 मिनट्स एंड देन परफॉर्म अ क्रैंकेस इंस्पेक्शन. उसके बाद फिर करेंगे. इफ ऑल इन ऑर्डर देन ओनली यू कैन टेक इट ऑन लोड.
सो बेसिकली ऑल द थिंग्स यू हैव टू चेक. क्रैंकशाफ्ट डिफ्लेक्शन ऑल्सो लेंगे, लुब्रिकेटिंग ऑयल कंडीशन भी चेक करेंगे. लूब ऑयल, अच्छा ओवर स्पीडिंग हुआ है तो ओवर हीटिंग की वजह से मे बी लूब ऑयल का कंडीशन ना खराब हो गया होगा, तो ऑयल का कंडीशन भी चेक करेंगे. विल टेक अ लूब ऑयल टेस्ट ऑल्सो. इलेक्ट्रिकल में ऑल्टरनेटर का कंडीशन चेक करेंगे, ऑल्टरनेटर रोटर. ओके, बत्ती साहब को बोल करके वी हैव टू चेक द ऑल्टरनेटर कंडीशन, एनी अबनॉर्मेलिटी कॉज्ड. ओके, स्टेटर रोटर और जो भी है अल्टरनेटर में उसके वायर्स और कंडीशंस, और ओवर स्पीड ट्रिप तो डेफिनेटली चेक करेंगे. इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड कंपोनेंट्स फॉर वेयर एंड टियर. तो ये हो गया चेक्स. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए 4-stroke इंजन डिस्क्राइब ईच ऑफ द डिफरेंट स्ट्रोक ऑफ द साइकिल. ड्रॉ अ 4-stroke इंजन टाइमिंग डायग्राम डिस्क्राइबिंग द कंप्लीट साइकिल. How each stroke is completed with action of crank, travel and inlet exhaust valve. I think ये तो मतलब पुराना क्वेश्चन है ये, वाल्व टाइमिंग डायग्राम एक्सप्लेन करने का और स्ट्रोक एक्सप्लेन करने का. तो ये सब तो आप लोग जान ही रहे हो, ये कॉमन है. ये सक्शन स्ट्रोक, ये नीचे जाएगा पिस्टन तो ये इनलेट वाल्व खुलेगा, सक्शन स्ट्रोक. उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, ये इनलेट वाल्व बंद हो रहा है, इनलेट एग्जॉस्ट दोनों बंद है, दैट इज कंप्रेशन स्ट्रोक. देन एक्सपेंशन स्ट्रोक, जब आपका या फायरिंग हो जाने के बाद देयर विल बी एन एक्सपेंशन स्ट्रोक. और लास्ट वाला स्ट्रोक इज योर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जहाँ पे योर एग्जॉस्ट वाल्व विल ओपन. आई थिंक आई डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, इट इज डन इन डिटेल में भी पहले भी किया होगा आप लोगों ने. टाइमिंग डायग्राम आई थिंक आता होगा सबको. ओके, पुराना है. विद द एड ऑफ अ स्केच डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ अ 2-stroke इंजन. अभी हमने क्लास में किया था ये वाला, देखो ये सेम क्वेश्चन है ना. स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द 2-stroke मेन इंजन, हाउ आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल पार्ट्स हेल्ड टुगेदर. ये अच्छे से किया था क्लास में डिटेल में. एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ क्रॉस हेड गाइड्स, ये वाला पार्ट भी किया था. यानी पूरा क्वेश्चन ये 8 नंबर का, ये 8 नंबर क्वेश्चन ये अभी हमने कल परसों क्लास में किया. ये 3 बार देखो रिपीट भी हुआ है. तो ये क्वेश्चन भी पूछते हैं. आई वॉज नॉट अवेयर, देखो पूछते हैं ये क्वेश्चन. ओके, तो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है, पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको. इसमें जो डायग्राम दिया ये उतना अच्छा नहीं है. इंटैबुलेचर, ए फ्रेम, उसके बाद बेड प्लेट, और साइड से पूरा टाई रॉड आता है, और ये आपका मेन बेयरिंग है, सैडल. ठीक है, यू कैन ड्रॉ एनी डायग्राम दैट यू लाइक. बेसिकली दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स. ठीक है, तो कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसमें. दिस इज योर बेड प्लेट. अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या डिटेल पूछा है. डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट एंड हेल्ड टुगेदर कैसे होता है. तो पहले तो बेड प्लेट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पूछा है. ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में यू विल नॉट हैव द मूविंग कंपोनेंट्स. सो बेसिकली you have to explain about the bed plate, A-frame, this is your A-frame, entabulature, this will be your cylinder head. ये पुराना टाइप का कौन सा इंजन है, सिलेंडर हेड, cylinder block, and cylinder block will have your cylinder head. Okay, so structural component में you have to explain the bed plate. चलो यहाँ से we'll see कि क्या क्या है one by one. जल्दी जल्दी हो जाएगा. तो foundation of the engine is your bed plate. Foundation of the engine supports the engine weight, houses the main crankshaft bearings. Okay, and but in case of a 2-stroke engine, 2-stroke पूछा है ना, it does not have the sump. Sump is your dry sump in case of a 2-stroke engine. तो sump is not here, it is
ट्रेसल टाइप ऑफ बेड प्लेट, ओल्ड टाइप ऑफ बेड प्लेट वेयर it was incorporating the sump. Generally your 4 stroke engine, medium speed engine, उसमें क्या होता है, कास्टेड होता है ना बेड प्लेट नीचे, उसी में संप होता है, तो वो वाले बेड प्लेट में संप कलेक्ट होता है. हमारे 2 स्ट्रोक इंजन में द संप इज नॉट इंक्लूडिंग योर बेड प्लेट. देन यू हैव ए फ्रेम और कॉलम्स. तो ए फ्रेम जो होता है ये साइड वाला फ्रेम होता है जिसमें कि यू हैव टाई रॉड्स पासिंग एंड एट द टॉप वेयर यू हैव, मेनली इसका काम है क्रॉस हेड गाइड को कॉलम की तरह सपोर्ट करता है ये. तो बेसिकली जैसे हम लोग घर बनाते हैं जो पिलर होता है ना, वो आपका ए फ्रेम हो गया, कॉलम्स भी बोलते हैं इसको. तो दे सपोर्ट द सिलेंडर ब्लॉक एंड ट्रांसफर द कंबशन फोर्सेज डाउनवर्ड्स एंड बेसिकली दे, उसमें क्रॉस हेड का गाइड होता है जहां पे क्रॉस हेड मूव करता है ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक. ठीक है, तो क्रॉस हेड गाइड्स को ये करता है और यहाँ पे क्रॉसेड गाइड जो होता है उनके साथ जो है लगा होता है तुम्हारा टॉप ब्रेसिंग, उनको सपोर्ट करता है ए फ्रेम. ठीक है, उसके बाद सिलेंडर ब्लॉक इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच इज ऑन द टॉप ऑफ द इंटैबुलेचर. ऑन द टॉप ऑफ द इंटैबुलेचर इट हाउसेज योर सिलेंडर हेड. ठीक है, एंड एग्जॉस्ट वाल असेंबली. देन यू हैव tie rods. Basically the question which is in next part, tie rod कि how are the structural part held together. These are held together all, जैसे कि जो मैंने डायग्राम बनाया था ना ये वाला, ये दोनों आपके टाई रॉड्स होते हैं. जो एमसीसी इंजन में यू विल हैव ट्विन टाई रॉड्स लाइक दिस, ऐसे एक साथ 2 आएंगे, और एमसी इंजन में यू हैव सिंगल टाई रॉड लाइक दिस. सो एमसीसी इंजन में योर टाई रॉड्स विल एक्सटेंड ओनली अप टू योर ट्रांसवर्स गर्डर एंड एमसी इंजन में इट विल गो अंटिल डाउन ऑफ द बेड प्लेट और नीचे जाके टाइट होगा. तो टाई रॉड्स जो होते हैं ना यही इंजन को टाई करके रखते हैं पकड़ के. मतलब योर इंटैबुलेचर, ए फ्रेम एंड बेड प्लेट आर टुगेदर हेल्ड टाइटेंड बाय योर टाई रॉड्स. बेसिकली दे आर प्री टेंशनड, क्योंकि दे आर प्री टेंशनड मतलब पहले से उसको टेंशन में रखा जाता है टाइट करके हाइड्रोलिकली, सो दैट दे कैन ओवरकम द टेंसाइल फोर्सेस. अब टेंसाइल फोर्सेस क्या होता है, इंजन को ऐसे खींचना चाहता है ऊपर और नीचे अपनी तरफ से, ऐसे इंजन को अपार्ट, एंड दैट्स व्हाई इट कम्स इनटू प्ले, इट हेल्ड्स इट टुगेदर अंडर कंप्रेशन. तो ये लिखना है आपको, कंप्रेशन के अंदर इसको नीचे की दोनों ऐसे करके बांध के रखता है टाई रॉड कंप्रेसिव फोर्स के. ठीक है, मेंटेन्स द इंजन रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, अलाइनमेंट को मेंटेन करता है इंजन का. ये है पर्पस ऑफ टाई रॉड. फंक्शन ऑफ क्रॉसहेड गाइड, जैसे कि वी हैव डिस्कस्ड, क्रॉसहेड गाइड आर द वंस विच टेक योर साइड थ्रस्ट थ्रू टॉप ब्रेसिंग. ठीक है, थ्रू इंजन टॉप ब्रेसिंग द साइड थ्रस्ट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द क्रॉसहेड गाइड्स. उसके बाद क्रॉसहेड गाइड इज वेयर योर क्रॉसहेड इज मूविंग इन ए चैनल फ्रॉम, दिस इज द एक्सियल मूवमेंट है ना. एक्सियल मूवमेंट का जो होता है इट विल इंश्योर योर एक्सियल मूवमेंट ऑफ द पिस्टन. जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाता है तो योर क्रॉसहेड इज मूविंग along with that. Ensure that the piston rod and piston move in a straight vertical axial line within the cylinder liner. तो इस तरह से it is maintaining alignment also, no? When your piston is moving along the channels, there is no chances of this sideways movement, ना transverse movement का chances नहीं होता है. So through that axial movement it is maintaining the alignment and stability in the पूरा कंप्लीट यूनिट. अदरवाइज क्या होगा, अनड्यू वाइब्रेशन हो जाएगा. दैट इज व्हाट द पर्पस ऑफ क्रॉसहेड गाइड इज, मेंटेनिंग द absorbing the side thrust, maintaining the axial movement of the piston, maintaining alignment and stability. ठीक है, बाकी तो enabling the lubrication separation. अब क्रॉसहेड गाइड के बाद तुम्हारा ऊपर जो वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे स्टफिंग बॉक्स लगा होता है ना इसके पास क्रॉसहेड के ऊपर. तो स्टफिंग बॉक्स विल मेक श्योर कि
your this cylinder lubrication is separate from your system lubrication. So there is one this enabling lubrication separation. इतना भी लिख दोगे, these 3-4 points are good enough to explain the purpose of crosshead guides. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, which is describe the problems in achieving good lubrication of cylinder liner. What are the properties of good cylinder oil? What are the consequences of under and over lubrication of liner? कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है देखो तो, नवंबर, जनवरी, सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, अगस्त, 6 बार रिपीट हुआ है। तो मतलब काफी बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम लोग को तैयार करके जाने चाहिए, ताकि अगर आ गया तो जैकपॉट है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि प्रॉब्लम्स इन अचीविंग गुड सिलेंडर लाइनर लुब्रिकेशन। कोई बताएगा लुब्रिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? एनी कैंडिडेट? ओके चलो, आई विल टेल यू। दिस इज द लाइनर, good lubrication of cylinder liner. अब because of liner lubrication, basically it is talking about liner and piston, where you have continuous movement of piston inside the liner from TDC to BDC. Because of that, the lube oil film retention in the liner is difficult to create. So that is why, because of, पहला तो एक हो गया कंटिन्यूअस मूवमेंट, ओके, दूसरा हो गया तुम्हारा हाई टेम्परेचर, तीसरा हो गया फ्यूल के अंदर जो एसिडिक कंपोनेंट्स होता है, जिसकी वजह से लाइनर तुम्हारा जो होता है कोरोड होने का चांसेस रहता है। उसके बाद चौथा है क्लोवर लीफिंग हो सकता है लाइनर का, मतलब क्लोवर लीफिंग इज अ फिनोमेना। ये देखो, ये एक लाइनर है ना, ये अगर गोल लाइनर ऐसा है, क्लोवर लीफिंग का मतलब इस टाइप से एक लीफ का स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब जो क्विल्स है, क्विल्स के पास तो लुब्रिकेशन अच्छा होता है, बट व्हेन द लुब्रिकेशन इज not the cylinder oil not spread properly in the liner, so some surfaces are more worn out and the surfaces where lubrication has reached become like a ridge structure, this type है ना। जहां पे lubrication नहीं हुआ वो ऐसा worn out हो जाएगा, जहां पे lubrication हुआ that will not be worn out, so this will form like a clover leaf type of structure. Liner lubrication में this is one of the phenomena, clover leafing. Acidic corrosion, okay, because of the cold, अब ऊपर तो हॉट होता है लाइनर जहां पे आपका फायरिंग होता है, बट द डाउनवर्ड पोर्शन ऑफ द लाइनर इज कोल्ड, ड्यू टू विच हियर कोल्ड corrosion कैन टेक प्लेस. So these are challenges with lubrication of liner. टेम्परेचर एंड प्रेशर इन्होंने लिखा ही है, इट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रेजेंट एंड कैन लीड टू ब्रेकडाउन ऑफ द लुबाइल फिल्म रिजल्टिंग इन पुअर लुब्रिकेशन एंड इंक्रीज वेयर द डिजाइन ऑफ द इंजन डज नॉट अलाउ फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू कि दो सरफेसेस के बीच में लुबाइल फिल्म को रिटेन करना काफी डिफिकल्ट है. दैट इज व्हाई यू यूज गुड प्रॉपर्टी ऑफ सिलेंडर लुब्रिकेटिंग ऑयल. अब सिलेंडर लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज पूछा है नेक्स्ट पार्ट में. सिलेंडर ऑयल के अंदर सबसे पहला तो एज वी हैव सीन द चैलेंज ऑफ एसिडिक कोरोजन, दैट इज व्हाई यू हैव हाई टीबीएन, टोटल बेस नंबर, और टीबीएन इज बेसिकली utilized to neutralize the acidic components of combustion. So that is why high TBN and TBN retention capability होना चाहिए सिलेंडर लुब्रिकेटिंग के अंदर.
ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी, बिकॉज वी हैव सीन द चैलेंज वाज टेम्परेचर, सो हाई ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन क्यों? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि व्हेन यू आर हीटिंग अप द ऑयल फ्यूम्स आर क्रिएटेड एंड द ऑयल लूजेज इज प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन होने लगता है ऑयल का। सो दैट इज वाई हाई ऑक्सीडेशन and thermal stability is required in good cylinder lubricating oil. Then you have anti-wear properties, detergency, dispersency. डिटर्जेंसी का मतलब क्लीनिंग करेगा, जो भी कंटेमिनेंट्स है उसको क्लीनिंग करके इट विल accommodate it within itself and will send into the scavenge space या अंडर पिस्टन स्पेस में। जब हमारा जब स्क्रैप डाउन होके गिरेगा ना ये सिलेंडर ऑयल, तो इट विल कैरी आउट ऑल द कार्बन एंड कॉन्टेमिनेंट्स एटसेट्रा। तो वो प्रॉपर्टी होती है सिलेंडर ऑयल की जिसको बोलते हैं डिटर्जेंसी। डिटर्जेंसी, डिस्पर्सेंसी, एंटी वियर प्रॉपर्टीज, हाई ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी एंड गुड टीबीएन एंड इट्स रिटेंशन कैपेबिलिटी। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर ऑयल। पार्ट सी में पूछा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर एंड ओवर लुब्रिकेशन। ठीक है, अंडर लुब्रिकेशन में एक तो हमने बता ही दिया आपको, दैट इज योर क्लोवर लीफिंग। अंडर लुब्रिकेशन में योर वियर विल इंक्रीज, स्कफिंग और सीजर ऑफ द पिस्टन एंड लाइनर कैन टेक प्लेस। अंडर लुब्रिकेशन के केस में क्या होगा? बाउंड्री फिल्म नहीं बनेगी, देयर विल बी अ ब्लो बाय ऑफ द गैसेस, पिस्टन रिंग विल सीज इन इट्स, पिस्टन रिंग जो होगा अपने पॉकेट में सीज कर जाएगा, एंड ड्यू टू विच यू विल हैव लोकलाइज्ड वेल्डिंग विच इज कॉल्ड स्कफिंग, और माइक्रो सीजर होने का चांसेस रहता है इन केस योर लुब्रिकेशन हैज रिड्यूस्ड, ड्यू टू विच यू विल हैव लाइनर का स्कोरिंग हो जाएगा। If your micro seizure or scuffing has taken place, your liner will become a polished liner that will not be able to retain any further any of the lube oil film. So under lubrication is very dangerous scenario where it will get heated up and finally you will lose up your liner. क्योंकि scoring के बाद liner is of no use, you have to change it heavy scoring के बाद you have to change it if honing is possible. Honing is basically creating the same surface which can retain the lube oil. तो honing tool से honing करते हैं, but if the scoring is too much it is not worth to hone the liner surface. You have to change the liner in that case. एक तो वो हो गया। दूसरा we have to study over lubrication. ओवर लुब्रिकेशन में क्या होगा कि लूब ऑयल इटसेल्फ विल फॉर्म डिपॉजिट्स। सी, कार्बोनेशियस डिपॉजिट्स विल फॉर्म विच विल ब्लॉक योर स्कैवेंज एयरपोर्ट एंड विल कॉज हैवी डिपॉजिट्स इन योर स्कैवेंज स्पेस। जो अंडर पिस्टन स्पेस होगा उसमें बहुत ज्यादा डिपॉजिट होगा ओवर लुब्रिकेशन के कारण, एंड ड्यू टू ओवर लुब्रिकेशन योर लूब ऑयल इटसेल्फ विल गेट स्टिकिंग टू द लाइनर एंड पिस्टन रिंग। इतना ज्यादा लुब्रिकेशन हो गया कि वो खुद ही बिकेम अ रीजन फॉर योर मतलब नॉट लुब्रिकेशन नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। तो बिकॉज ऑफ ओवर एक्सेस लुब्रिकेशन ऑयल विल बर्न एंड गिव यू कार्बोनेशियस डिपॉजिट्स एंड विल डिपॉजिट इन द लाइनर एंड पिस्टन रिंग्स. Deposit will collect in the under piston scavenge space, will increase the risk of scavenge fire. Okay, excess oil may run down the cylinder in case of a defective piston ring gland, piston rod gland. मतलब आपका जो ये है stuffing box, that will also have excessive amount of work to be done scrap down करने के लिए, because heavy amount of oil will be flowing. तो ये कुछ सिनेरियोज है वेयर ओवर लुब्रिकेशन कैन कॉज इश्यूज. आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस पेपर. ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेम सर, व्हाई सिलेंडर ऑयल इज इंजेक्टेड व्हेन पिस्टन इज मूविंग टुवर्ड्स टीडीसी एंड इंजेक्टेड इन बिटवीन द पिस्टन रिंग्स. ओके, ये प्रेम का क्वेश्चन का जवाब देते हैं. तो
he has asked ki why the piston cylinder oil is injected when piston is moving towards TDC. Okay, piston is moving towards TDC, upward movement, and when it coils ka position is when the piston is around mid travel, then your cylinder oil will be injected, smeared off on the oil of the piston ring packs. Reason being कि से आप ही सोचो कि when you are going towards this, it is on the compression stroke. That time the amount of heat generation that is about to happen because of the combustion in the combustion chamber and the acidic components that will be generated will be requiring this cylinder oil, fresh lot of cylinder oil to neutralize the एसिडिक कंपोनेंट्स. पहला तो ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन. दूसरा, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, because when it is under the compressive force, the friction component is more here. When the piston is compressing, then it is more under pressure. ठीक है, because when it is under the exhaust stroke, उस टाइम पे तो there is no pressure on the piston, it is coming directly due to the movement from the top, है ना. और उस टाइम पे you don't, if you give oil, there is no, all the oil will go and scrape out. तो अभी जो है ऑयल जब ऊपर की स्ट्रोक में देंगे तो ऑयल आपका एक तो कंबशन को न्यूट्रलाइज करेगा, फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा, प्लस हीट को डिसिपेट करेगा. हीट डिसिपेशन, जो हीट ऑफ कंबशन होगा, उसके बाद इल कैरी जो भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होगा, जो भी कार्बोनेशियस डर्ट और डिपॉजिट्स होगा, वो नीचे जब जाएगा पिस्टन तो स्क्रैप डाउन करके इट विल सेंड इट टू अंडर पिस्टन स्पेस, है ना. तो दैट इज व्हाई व्हेन द पिस्टन इज गोइंग अप देन ओनली यू गिव सिलेंडर लूब ऑयल फॉर दीज फॉलोइंग रीजंस एंड नॉट व्हेन इट इज ट्रेवलिंग डाउन. प्रेम क्लियर हो गया? आई थिंक यस. ओके, ठीक है. थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स. मे बी वी विल इम्प्रोवाइज फॉर अ बेटर सेशन नेक्स्ट टाइम. थैंक यू. जय माता दी एवरीबॉडी. बाय बाय. टेक केयर.